visible है avian aspergillosis. So I will try to deal with avian aspergillosis and avian tuberculosis, these two important topics today. It was scheduled at 4 p.m. but due to some reason I have preponed it at 3 p.m. today. So first of all, we will deal with avian aspergillosis. Later on, I will try to deal with avian tuberculosis particularly. So, spirochetosis can be also called as borreliosis, or it can be also called as tick fever. Since it is caused by spirochete, namely Borrelia anserina, it is called as borreliosis. And since it is transmitted by soft tick, it is also called as tick fever. These two important synonym for spirochetosis. And this is a bacteria, no doubt. Borrelia anserina is a bacteria of spirochetosis nature, and those and every spirochetes are being characterized by having body which are twisted like a thread. It is twisted like a thread, filamentous thread-like, and it has spirally coiled. These bacteria have a basic property of a spiral coiling like structure. So, some introduction. It is a septicemic disease and it has a very acute course. And the bird which are being infected by affected by spirochetosis, shows the characteristics of feature of depression, cyanosis of common vitals, diarrhea, there is leg weakness, and sometimes it can even lead to coma, paralysis, and death. And in poultry industry, it is one of the significant economic causing disease. So, but one thing since it is tick transmitted disease, therefore the prevalence of this infection will be in those areas where there are predominant ticks are found there. So it is usually in the endemic area, and also that the tick are particularly favor this warm and humid climate. So the season nowadays is favorable for growth of the ticks, and in this season you can see maximum cases of spirochetosis. So who can be affected? Birds like chickens, turkeys, geese, ducks, and any other bird species can be affected, and at any group. Any group. However, it is more common in the young age group of birds, but it can affect any age group of birds. And it is usually found in the tropical and temperate regions due to prevalence of ticks in these climatic zones. Regarding etiology, it is caused by Borrelia anserina. It is a spirochete which is characterized by a spirally coiled bacteria. These are very thin, long bacteria, but as seen in Leptospira, they do not have hooks. They do not have hooks. In this diagram, you can see the presence of bacteria in between the neglected RBC of bird. Here you can also see the filamentous thread-like bacteria in the blood smear of the poultry blood. In poultry the RBCs are neglected, so these are all RBCs and these are WBCs basically. So in between the RBCs you can see this filamentous structure, the coiled filamentous structure. These are all spirochetes. And if you remember in Leptospira, a special staining is used, that is silver impregnation method. But in case of Borrelia anserina, it can be even stained by Giemsa or even by HNE. So no special stain is needed for staining of spirochetes. Regarding transmission, it is very important. Transmission is by soft tick, Argus, but all species of Argus cannot transmit the disease. It is only Argus persicus, which is commonly called as fall tick. It can only transmit the disease. So, how they get infected? During a affected bird, during the biting of a affected bird, these ticks swallow the blood and contaminated with the bacteria inside their gut,
and from the gut wall they penetrate inside the body cavity. After feeding of infected chicken, these spirochetes in the intestine penetrate their intestinal wall and they reach in the hemolymph in the body cavity of the ticks, which is better called as hemolymph in case of insects. So it comes in the hemolymph, and from there it gets settled in the gonads, salivary glands, and also in the central nervous system. And from the salivary glands, they are able to transmit the disease when they bite other birds. So if you see, within a short span of feeding of the bacteria, within 6 to 7 days, the tick become infective. That is, within 6 to 7 days, these bacteria from the intestine comes in the hemolymph, multiply, and they reach in their salivary glands so that they can be transmitted to other birds. So within a fraction of days, 6 to 7 days. And you should also remember that ticks are even infective for about 500 days. Once a tick are getting infected, they can even remain infective for about 500 days. So for the survival of this bacteria, ticks are must. And also you should know that from one tick, the bacteria can pass to the another tick by trans-ovarian route. Since the bacteria is found in the gonads of the tick, there can be trans-ovarian transmission can also be seen. So one infected tick can pass the bacteria to its progeny, and it is helping the bacteria for survival in the environment. Next, what you can see the clinical sign. So basically, it is loss of appetite. In general, this you can see these changes in any birds during any infection, that they refuse eating, they are depressed, the gall appear pale because there is anemia. So the combs and the vitals appear pale due to anemia, and the feathers are ruffled. And also you can see the diarrhea, the fecal material becomes greenish. Why it becomes greenish? In any case, when you hear that the diarrhea in birds is becoming greenish, so इसके पीछे concept क्या है? कोई बता सकते हो कब हो जाता है greenish? In which case the diarrhea can become greenish? Anybody can tell me? जब भी डायरिया ग्रीनिश हो तो उससे क्या समझते हो? क्यों हो जाता है? सर लीवर में प्रॉब्लम होगा। हाँ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा भी है बाइल स्टेन फीसेस। एक्चुअली इन केस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, जब भी कोई एनिमल हो, बर्ड हो या ह्यूमन हो, जब उसका एनोरेक्सिया हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है और साथ में ज्यादा पानी पीना शुरू कर देता है, इन दीज बोथ कंडीशन आप देखेंगे कि इसका गॉल ब्लैडर, अगर ऐसे एनिमल्स का पोस्टमार्टम करके भी देखोगे तो उसका गॉल ब्लैडर हाईली डिस्टेंडेड हो जाते हैं, हाईली डिस्टेंडेड हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड विद द बाइल, और वही बाइल फिर चला जाता है उसका फीकल मटेरियल में, due to high content of the bile pigments in the fecal material, it makes it greenish. So ये जनरल कंसेप्ट है। कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, जब भी आप ये देखोगे उसका कुछ हिस्ट्री में ऐसा है कि इट इज एनरोक्टिक, खा पी नहीं रहा है, या ड्यूरिंग पीएम आप देखते हैं कि गॉल ब्लैडर उसका डिस्टेंडेड है, तो सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि द एनिमल वाज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया, ठीक है। एंड आल्सो देयर कैन बी पैरालिसिस। Morbidity is 100%, but mortality is also not very less. It also is about 50%. And other than mortality and morbidity, there is reduction in the egg production. When such birds are being brought for postmortem, or the gross lesions in the case of spirochetosis, is सबसे important point is this first point, enlarged and mottled spleen. So in case of spirochetosis, the spleen is severely enlarged, about 6 times of its normal size. The spleen become enlarged. This is the most distinctive feature in the case of spirochetosis, mottling and severe enlargement of the spleen. Why? Due to the breakdown of the RBC. Due to some immune mediated condition, there is breakdown of RBC. So spleen, you know, spleen is the graveyard of RBC. In any case, when there is hemolytic anemia, the spleen has to be enlarged. So this is a important case in spirochetosis. Also, there is huge enlargement of the spleen. Other than this, there will be the hemorrhage. कहाँ पे होगा hemorrhage?
in between the junction of proventriculus gland and the gizzard. दो जगह hemorrhages दिखते हैं इसके in between the junction of the proventriculus and the gizzard, जैसा कि IBD में देखते हो, प्लस proventriculus में भी दिख सकता है proventriculus gland में, लेकिन जो मेजर hemorrhages होते हैं it is in between the junction of the proventriculus and the gizzard. ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ जरूर है in the proventricular gland, मगर ये it is not right है ना, it is usually in the at the junction of the proventricular gland and the gizzard. Along with spleen, the liver is also enlarged and there is mottling, pinpoint necrotic foci you can see, and as I was telling, in the fecal material you can see bile. So there will be enteritis that will be stained by the bile pigments, and also the kidney. Kidney, you can see a remarkable feature in the kidney also. The kidney show nephrotic sign, clear-cut nephrotic sign. Their tubules will be dilated with the uretes and it will appear whitish pale. So in this diagram you can see this is spleen. Such big spleen is rare to be seen. Along with the huge enlargement, there is ecchymotic hemorrhages over the surface of the spleen. So it appears mottled. Mottling and enlargement of skin you can see, the spleen you can see in this diagram. And in this diagram you can see the huge enlargement of the liver. You can also see the necrotic foci over the liver, and therefore it is appearing mottled. So presence of white necrotic foci and presence of huge enlargement of spleen indicates the case of spirochetosis. Regarding diagnosis, you can diagnose it by help of the lesions, by help of the symptoms. You can take blood smear and routinely stain with even Lisman or Giemsa, and you can see the parasite. Presence of ticks on the flock and isolation on the embryo. See, usually on the embryonated chicken, virus are being isolated, but in case of spirochetes, particularly Borrelia, they are also being isolated in the embryonated chicks. Okay, and you can even do histopathology to demonstrate the bacteria, the different tissue. Regarding prevention and control, the foremost important thing is that you have to eradicate the vectors by any means. You have to eradicate the vectors so that the transmitting organism can be removed from the premises. Okay, so once again I am trying to recapitulate all these things in a more simple manner. So it is just a recapitulation of the spirochetosis. As I have told you, it is caused by Borrelia anserina. Simple. As I have told you, it is due to soft tick. Always remember, all species of Argus cannot transmit the disease. It is only the Persicus, Argus persicus, which can transmit the disease. As I was also telling you that it is endemic, since the presence of ticks decide the disease. So in those parts of the country where there is prevalence of soft ticks, there you can see the most cases of spirochetosis. Regarding transmission, I have told you it is the Argus persicus, and regarding pathogenesis, I have also told you that from the lumen of the gut of the ticks, they penetrate the gut wall, enter the hemolymph and localize in the CNS, salivary glands and gonads. From the salivary gland, they can pass the infection to other birds. From the gonads, there can be trans-ovarian transmission of the ticks. So at this point, I have also mentioned you that the tick become infective even as early as 6 to 7 days of infection, and can then remain infective for about 500 days. I have told you, and also I have told you that the outbreaks are mostly common during the warm and humid regions, which favors the presence of ticks, growth of the ticks. Regarding symptoms, I have told you there will be the cyanosis and pallorness of the comb and petals. The bird will appear dull and erratic, ruffled feathers. There can be green diarrhea. Look here, greenish diarrhea containing, it is due to containing excessive bile and uretes. Urate will lead to whitish diarrhea.
and bile pigments will lead to greenish diarrhea, and it is always due to anorexia and increased water consumption. And one important thing that I have missed, that in the case of spirochetosis, there will be the abrupt change in the temperature. There will be the abrupt elevation in the body temperature in the initial stage. In the later stages, just before that, the temperature goes down. But in the initial stages, there will be an increase in the temperature. There will be paralysis. There can be partial paralysis. There will be severe anemia, and the body will be comatose, and finally it will die. And see, regarding gross lesions, I have told you the spleen will be markedly enlarged about 6 times. I have also told you in the liver there will be small necrotic foci. I have also told you in the kidney it will show the lesions of necrosis characterized by deposition of urates, and in the intestine the contents will be mixed with the bile. It will appear green, and there will be hemorrhage, especially at the junction of proventriculus and gizzard. Regarding histopathology, that is microscopic lesion in spleen, you can see the presence of mononuclear cells, that is the macrophages particularly, and you can see erythrophagocytosis. ये क्या है? Erythrophagocytosis समझते हो? Anybody? तो बता सकते हो what is this? Erythrophagocytosis? not Anyone? sure. देखो क्या मैंने कहा कि जो एनीमिया है यहाँ पे, जो हेमोलिटिक एनीमिया है, दैट इज ड्यू टू मीडिएटेड। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो नॉर्मल आरबीसी का सरफेस पे जो एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो एंटीजेंस नॉर्मल नहीं रह जाते, वो एंटीजेंस ऐसे हो जाते हैं जो बॉडी के लिए फॉरेन एंटीजेंस की तरह हो जाता है। जब ये फॉरेन एंटीजन सर्कुलेट करेंगे सर्कुलेशन में, तो नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम जाएगा, और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उसको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। इवन न्यूट्रोफिल्स अपने ही आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। दिस इज एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर ब्लड पिक्चर में आप देखो तो बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखता है। इनसाइड न्यूट्रोफिल्स यू कैन सी द एक्युमुलेशन ऑफ आरबीसीज, एक या दो आरबीसी न्यूट्रोफिल्स के अंदर दिखेंगे, माइक्रोफेजेस के अंदर 3-4 आरबीसी आपको दिख सकते हैं। तो दिस इज ए केस ऑफ एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस ड्यू टू चेंज इन द एंटीजेनिसिटी ऑफ द आरबीसी। ठीक है, एंड देयर विल आल्सो बी डिपोजिशन ऑफ हेमोसिड्रिन। ये हेमोसिड्रिन क्यों होंगे तो बताओ? आरबीसी का लाइसिस हो जाता है सर। हाँ, आरबीसी के लाइसिस हो जाते हैं नेचुरली, तो जो आयरन रिलीज होगा दैट विल बी डिपॉजिट एज हेमोसिड्रिन। तो यू कैन फ्रेम दिस थिंग्स, है ना। अगर आपको पता है कि इसमें ऐसे चीजें होते हैं, तो आपको नहीं भी मैं बताऊं तब भी आप किसी भी डिजीज में, मैं कहता हूँ हेमोलिटिक एनीमिया है, मैंने ये आपको नहीं बताया कि स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन आप लिखने के लिए आ जाता है जब भी हेमोलिटिक एनीमिया होगा, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, तो वहाँ स्प्लीन मेगेली होना ही होना है। तो बहुत गौर से और बहुत शौक से हम उसको पढ़ते हैं कि देयर इज स्प्लेनोमेगाली, उस तरह से वो हैबिट से बाहर निकलो, एकदम आप समझ लीजिए कंसेप्ट है। जहां भी आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे, then RBC is the spleen is the graveyard for RBC destruction। तो नेचुरली स्प्लीन का काम बढ़ ही जाता है, स्प्लीन का काम बढ़ेगा तो इनलार्जमेंट हो ही जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट आप इस स्टेज में डेवलप कर लेना चाहिए कि रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें मैंने पढ़ा था स्प्लेनोमेगाली, उसमें पढ़ा था। तो जहां पे आप देखिए कि एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और आपको स्प्लेनोमेगाली लिख ही देना है। ठीक है, अब जहां भी इम्यून मेडिएटेड चीजें आएंगे वहां पे हम ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। जहां भी आरबीसी टूटेंगे हेमोसिड्रिन लिख सकते हो, इसमें कोई अलग से रटने का जरूरत नहीं है, आप हैबिट बना लो। ठीक है, तो इट कैन बी सेम, तो सेम कंडीशन विल अपीयर इन द लिवर आल्सो। वहां पे एरिथ्रोफैगोसाइटिस कंडीशन दिखेगा, क्योंकि वहां पे एमपीएस के सेल्स है, वहां पे एमपीएस के सेल्स जो है वो कपर सेल्स है बेसिकली, और हेमोसिड्रिन दिखेंगे। सिंपल है, जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे आपको इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे, वो सिंपल ही है। तो इस तरह से यू कैन फ्रेम द हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजंस। एट इट स्टेज आपको रटने का जरूरत नहीं, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। शुरू में हमें बताना होता है, बाद में आप समझ सकते हो। तो सिल्वर स्टेन यूजुअली हम लोग यूज करते हैं स्पायरोकिटोसिस के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ बोरेलिया एंसेराइना आप सिंपल जिम्सा स्टेन, जो सिंपल रूटीन स्टेन करते हैं और हीमोपेटोजेंस के लिए, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये ब्लड में भी देख सकते हैं और टिश्यू में भी देख सकते हैं, किसी भी टिश्यू में। ठीक है, तो और मैंने आपसे ये भी कहा कि पैरालिसिस हो सकता है, बर्ड कोमाटोज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन में भी अफेक्शन है, तो इन ब्रेन इट लीड्स टू मेनिंजोएंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट स्पायरोकिटोसिस। छोटा ही है मगर आपको डील नहीं किया गया था, इसलिए ये सब डायग्नोसिस मैंने आपको ये
डिस्क्राइब कर दिया, मैंने बताया था। So you have to demonstrate the bacteria, you have to demonstrate the antigens, you have to demonstrate the antibodies. इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे ये पीजी वालों के लिए जरूरी है, बट गो थ्रू दैट। और क्योंकि टाइम है, टॉपिक छोटा है, आपका सिलेबस में एवियन ट्यूबरकुलोसिस भी है, सो मैं चाहता हूँ कि टीबी भी पढ़ लें टुडे, है ना। तो इन दिस क्लास विल आल्सो डील विद द एवियन ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपने पढ़ा है एनिमल ट्यूबरकुलोसिस, बस उसी को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एवियन ट्यूबरकुलोसिस। क्या क्या बता सकते हो अगर मैं आपको पढ़ाया नहीं एवियन ट्यूबरकुलोसिस, मैंने आपको पढ़ाया है ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस। अब मैं आपसे पूछूं कि नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है, क्या बताएंगे आप? आपके स्क्रीन पे ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है स्लाइड? यू कैन सी। यस सर, यस सर। बताइए, मिनट्स टाइम है, ये टॉपिक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताइए, एलेबोरेटेड इन वेरी डिटेल इन एनिमल ट्यूबरकुलोसिस, बस इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे, एवियन ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाएगा। ट्यूबरिकल इनसाइड लंग्स, ट्यूबरिकल फॉर्म होता है लंग्स में। हाँ, लंग्स में कहीं कहीं भी हो सकता है, इससे बाहर निकले, ठीक है। मोस्ट कॉमन इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, नो डाउट लंग्स में होते हैं, सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन टीबी कहीं भी हो सकता है। रेयर रेयर फाउंड ऑन द हार्ट, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड्स, ऐसी जगह पे रेयर प्रेजेंस है, लेकिन हो कहीं भी सकता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, वो आप सही कह रहे हैं। और क्या देख सकते हो, और क्या बता सकते हो रिगार्डिंग एवियन ट्यूबरकुलोसिस? epithelial tissue we can observe, sir. हाँ, ग्लोमेटस कंडीशन के जो फीचर्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, जी, जायंट सेल्स होंगे, वो भी ठीक है। altered macrophages रहेगा सर, Langerhans cell लाइनेस टाइप ऑफ जायंट सेल्स होंगे, वो भी ठीक है। yes sir, और yes sir. और सबसे इम्पोर्टेंट, टीबी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव इमेशिएशन होता है, ठीक है। वेट लॉस प्रोग्रेसिव होता है, इमीडिएट डेथ नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं स्पायरोकिटोसिस में कह रहा था कि वो ज्यादा किसी भी एज में हो सकता है, मगर केसेस आर मोर प्रिवेलेंट इन द यंग एज। मगर अब टीबी में आपको ऐसे कहना होगा, इट कैन अकर एनी एज, बट मोर केसेस विल बी सीन इन द एडल्ट स्टेज। क्योंकि ये बहुत क्रोनिक है, बहुत टाइम लेता है, मुर्गी का लाइफ स्पैन भी छोटा ही होता है, तो बहुत जल्दी एडल्ट हो जाते हैं। तो अक्सर आपको एवियन ट्यूबरकुलोसिस छोटे बर्ड्स में नहीं दिखेंगे, वो विद इन डेज वो बड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपको एडल्ट बर्ड्स में ही दिखेगा, ठीक है। और प्रोग्रेसिव, ये आप जानते हो हाईली क्रोनिक है, इमीडिएट डेथ होना नहीं। प्रोग्रेसिव इमेशिएशन इंपॉर्टेंट टर्म होने चाहिए फॉर ट्यूबरकुलोसिस व्हाइल डिस्क्राइबिंग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और बताइए, यही सब चीज इसमें लिखा हुआ है, आप जानते हो। टीबी स्लो स्प्रेडिंग भी है, ये भी कंडीशन होता है, ठीक है। ये भी लिखा है सेमी मैच्योर है और इमेच्योर, मतलब ग्रोअर और एडल्ट बर्ड देखेगा, चिक्स में यूजुअली नहीं दिखेंगे। प्रोग्रेसिव वेट लॉस होगा, इमेशिएशन होगा, इसका कोर्स काफी लंबा होता है, मोर्टेलिटी लेस होता है, दिस थिंग्स यू नो, ठीक है। और कुछ बता सकते हो, एनीथिंग मोर रिगार्डिंग इटियोलॉजी? Mycobacterium avium complex बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से सिंपल माइकोबैक्टीरियम एवियम, बस उसी से होता है, ठीक है। और ये इससे थोड़ा सा वो है, इस इटियोलॉजिकल एजेंट से एवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम कैन आल्सो इफेक्ट पिग्स, sheep, cattle and even human beings, है ना। तो थोड़ा सा जेनेटिक है, थोड़ा अदर एनिमल्स को भी हो सकता है ये बैक्टीरिया, जैसे कि एनिमल बैक्टीरिया ह्यूमन में हो जाता है, उसी तरीके से बर्ड के टीबी एनिमल्स पे चले जा सकते हैं। ह्यूमंस में रेयर जरूर है, बट इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन आल्सो। मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया, उसका कुछ क्राइटेरिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सकते हो कि ग्लोमा क्यों कॉज करता है इस तरह से, या मैं पूछूं पैथोजेनेसिस क्या है इसका, बता सकते हैं आप? पैथोजेनेसिस इन जनरल, बर्ड से रिलेटेड हो, एनिमल से, सबका एक ही बात है। सबसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इसका? हाई लिपिड कंटेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन Mycolic acid Mycolic के acid wall फॉर्म होता है। लिपिड कंटेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी चेंजेस, इसका एसिड फास्ट होना, इसका ग्लोमा फॉर्मेशन कराना, इसका हाईली रेसिस्टेंट होना, इसका इनसाइड सेल के अंदर भी जी लेना, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके पास क्या है? इसके पास है हाई लिपिड कंटेंट।
इसके पास है माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड भी एक फैट ही है, लिपिड ही है। सो ये इसको सबसे खास बनाता है, प्रेजेंस ऑफ हाई लिपिड, परसेंटेज ऑफ हाई लिपिड इन इट्स सेल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो रिगार्डिंग ट्रांसमिशन वैसे ही है जैसे एनिमल्स में होता है, कैसे भी आप जानते हो, अलग नहीं है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ये है कि कैनिबलिज्म ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, कभी भी बर्ड्स में कैनिबलिज्म शुरू हो जाता है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड है जिसको पहले से टीबी है और उसका मांस खा ले तो टीबी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो सकता है ब्लॉक में, है ना। रिगार्डिंग क्लिनिकल साइंस ये भी बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, डायरिया होंगे, इमोशेशन होंगे, और ये जो कॉम एंड वेटल्स होंगे ड्यू टू इमोशेशन, ड्यू टू वीकनेस, वो कैसे हो जाएंगे, पेल पड़ जाते हैं। कोई जॉन्डिस नहीं है, ये पीलापन नहीं है, ये पेलनेस है। येलोनेस अलग चीज होता है, पेलनेस अलग चीज होता है। ठीक है, मोटिलिटी बहुत कम ही होते हैं, ये भी अब, और इसमें नोडल फॉर्मेशन होता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। प्लस इसमें कभी कभी ब्रेन मतलब नर्वस मैनिफेस्टेशन होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय जर्की हॉपिंग गेट, और इसमें लेमनेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिलैटरल लेमनेस, यूनिलैटरल लेमनेस के वजह से ही जर्की मूवमेंट होता है। ये कुछ है रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट विद इन मैक्रोफेजेस, ये भी जानते हो। ठीक है, सो कंप्लीट स्टोरी आपके पास है, सब कुछ जानते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या देखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रे येलो नोड्यूल्स इन इंटेस्टाइन, इन लिवर, इन किडनी, लंग्स, कहीं भी दिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्क्रीट ग्रेनुलोमास ओवर द लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनिमल के केस में, इसमें इंटेस्टाइनल टीबी बहुत ज्यादा देखा जाता है इन केस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बोन मैरो में भी होते हैं, कहीं भी हो सकता है, इसको अलग से आपको पढ़ना। दिस डायग्राम, इससे इस डायग्राम से आपको ये फायदा है कि यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड्यूल्स। इस तरह के एक आवाज से आ रही है किसी का बैकग्राउंड से, उसको थोड़ा म्यूट करो, तो ज़्यादा पेज पलट रहे हैं क्या, इसको म्यूट करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो इसके नोड्यूल्स को आप पिक्चर में देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। कभी कभी नोडल फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ फंगल डिजीज भी, जैसे कैंडिडियासिस हो जाता है, तो बर्ड्स में बहुत कॉमन है। तो इन केस ऑफ कैंडिडियासिस भी आपको इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे, इन केस ऑफ एवियन ट्यूबरकुलोसिस भी इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे। लेकिन सिंपल विदाउट एनी लैबोरेटरी डायग्नोसिस आप उसको पता लगा सकते हो कि डेट इज ट्यूबरकल नोड्यूल या फंगल का नोड्यूल है। क्या देखना होगा आपको, इन केस ऑफ कैंडिडियासिस जो ट्यूबरकल्स होते हैं, ट्यूबरकल्स तो नहीं बोलना चाहिए, जो ग्रेनोमास होते हैं इन केस ऑफ कैंडिडियासिस, उसके सेंटर में आप देखेंगे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, एंड दैट विल अपीयर स्लाइटली ब्लैकिश एंड ब्लूइश ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द फंगस। तो चूंकि वो फंगस है तो फंगल का ग्रोथ होगा, और फंगस जैसे ब्रेड में भी ग्रो होता है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, तो उसका नोड्यूल्स में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा। कीवी भी इस तरह का डिस्कलरेशन नहीं होता है। प्लस आप इसको इंसाइज कीजिए तो ग्रीटीनेस आता है इन केस ऑफ ट्यूबरकल नोड्यूल्स। तो ऑन स्पॉट आप डायग्नोस कर सकते हो इसको। और थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो सिंपल स्मीयर बनाइए, कुछ ज्यादा नहीं करना, टच स्मीयर लीजिए और एसिड फास्ट स्टेन कर लीजिए। अगर उसमें जेडन स्टेन टीबी बैसिलाई दिख रहा है तो ट्यूबरकल है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज ड्यू टू कैंडिडियासिस, तो पता हो जाता है। बहुत आपको उसमें बड़ा सिंपल ही है इसका टेक्निक। एंड रिगार्डिंग हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारे बातें मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता चुका है, आप भी कह रहे थे। प्रेजेंस ऑफ एपिथेलाइड सेल्स, प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स, प्रेजेंस ऑफ lymphocytes, presence of macrophages, central cageative mass, presence of calcification। बर्ड्स में यूजुअली कैल्सिफिकेशन नहीं होता, तो इसमें ये सारी चीज आप जानते हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। रिगार्डिंग डायग्नोसिस ये भी आप जानते हो, culture you can on the basis of PM lesions you can do it by doing culture examination, by doing impression smear staining you can डायग्नोज द केस। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो एकदम कंफर्मेटरी है, दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जैसा कि एनिमल्स में होता है, इसमें एवियन ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलेंगे, बस चीजें वही है। ठीक है, जैसा ट्यूबरकुलिन टेस्ट एनिमल्स में आपने पढ़ा है, बर्ड्स में भी बिल्कुल वैसा ही है। इन एनिमल्स में आप जानते हो कि स्किन के अंदर वैसे पेनिट्रेट करते हैं, इन केस ऑफ बर्ड्स यूजुअली इसमें वेटल्स यूज करते हैं। इन वेटल्स सबक्यूटेनियस ट्यूबरकुलिन प्रोटीन इज इंजेक्टेड टू ऑब्जर्व द चेंजेस, है ना। तो विद इन डबल इंटरडर्मल टेस्ट यूजुअली करते हैं और उसका थिकनेस चेक करते हैं। तो इफ इट इज अबाउट 10 मिलीमीटर थिक तो हो जाता है पॉजिटिव है। अब आपने किसी चीज को इंजेक्ट किया है नेचुरली, वहां पे
इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से थिकनेस तो होगा ही इनिशियल स्टेज में, तो कितना थिक हुआ डेट डिसाइड तो होना ही होना है, ठीक है। Regarding prevention and control, you have to eliminate the infected birds. You have to maintain a high standard of sanitation. You have to regular monitor the cases by testing in the flock and isolating the infected birds and avoid contact with the wild birds. TB के केस में wild animals का human हो या animals हो या birds हो, wild animals के wild birds के बहुत important रोल है, ठीक है। जू में भी या फिर जो रोमिंग बर्ड एनिमल्स होते हैं, खासकर एनिमल्स होते हैं, उससे आपका डोमेस्टिक एनिमल्स में पास हो जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज इन द डोमेस्टिक बर्ड्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, उन सबको चेक करना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पायरोकीटोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस आल्सो। तो यूजी मतलब सेकेंड ईयर में भी ये होना था, इसी बहाने दोनों ने अपने ही पढ़ लिया, उन्होंने भी पढ़ लिया। हाँ बोलिए। एवियन ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है क्या? पार्डन, किससे संबंधित? एवियन ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है क्या? तो क्या है, अगर आपको टीबी से रिलेटेड थोड़ा सा ट्रीटमेंट का आइडिया हो तो ये बड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट, इवन इन ह्यूमन जहाँ पे एडवांस्ड मेडिकेशन है, बहुत कुछ है, डॉट है, तो वहाँ पे आप जानते हो कि बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, इवन 6 वीक्स ट्रीटमेंट चलता है, और प्लस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर उसको आप जोड़ के देखिए तो कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी लगता है नहीं किसी इन्फेक्टेड बर्ड को आप ट्रीट करें। फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्यों करे वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं होता इन केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ओके, I should end the meeting. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.